Good morning, students. Today we are going to start new chapter of your class, that is exponents and power. This word exponents and power you people have heard in class 7th also. Exponent और power को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है that it is related something which we used to write above the number. Okay? So this is called power of the number, or I can say exponent of the number 2. Both are almost same, only a very slight difference is there between exponent and power. Only this x is called power, okay, and this whole form, ये जो फॉर्म है इसका जिसमें किसी नंबर्स के ऊपर पावर होती है, दिस काइंड ऑफ फॉर्म, दिस होल इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट्स. ठीक है. Now, first of all, we will just revise the laws of exponents which we have studied in class 7th also. Plus, we will add few more laws to it. Like number 1 is a raised to power m into a raised to power n. Now, two things we have to keep in mind. This is power and this is called base. ठीक है, बेस एंड पावर. एक्सपोनेंट्स में दो चीजों का रोल होता है, बेस का और पावर का. Now see, base you all can see. Now if base is same, so we will take base as common, and if it is multiplied, then the powers will be added. Now second law is same as this. Now in this case instead of multiply I am having divide sign. Okay. Now again base is same, so we will take base as common. Since here it is sign of divide, so it will be m minus n. Third law, now I am changing the power. Now in this case, power is same. ठीक है, पावर सेम है और मैंने किसको चेंज कर दिया, बेस को चेंज कर दिया है. So now power will come as common and the numbers will be multiplied. Similarly, fourth one, a raised to power m divided by b raised to power m. Now whatever is same that will be common. ठीक है, तो m common आ जाएगा and then a and b will be divided. Now similarly, fifth law of exponent, that any base whether it is 1, 2, 3, 4 or any value, it can take 100,000, if it is having power 0, its value is always 1. ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. One more law is a की पावर m and bracket n. Okay, so what does it mean, a raised to power m into n. ठीक है, तो ये हमारा 6th लॉ हो गया. इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई. बहुत सिंपल लॉ है. नाउ 7th वन, इफ a रेज टू पावर माइनस n, मतलब किसी भी बेस की पावर क्या है, अगर नेगेटिव है, सो इन दिस केस द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक दिस पावर एज पॉजिटिव. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इन डिनोमिनेटर आई एम हैविंग 1, नथिंग इज देयर, सो इट इज 1. तो मुझे इसका रेसिप्रोकल कर देना है and now the power will become positive. So whenever anything is given in negative power, we will make it positive by putting this in the reciprocal form. Okay, so these are the few laws of exponents. ये हमारे क्या है, laws of exponents. These are all laws of exponents which we have to memorize. ठीक है, इसे हमें याद करना है. तो एक्सपोनेंट में दो चीजें आती है, बेस एंड पावर. दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी विल मेमोराइज व्हेन वी विल डू सो मेनी क्वेश्चंस एंड व्हेन वी विल प्रैक्टिस द रिलेटेड क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी, लाइक सपोजिंगली इफ दिस इज द नंबर, okay, I am writing a number here. Now I have to expand this and that also in exponential form. मुझे इसको एक्सपेंड भी करना है और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी करना है. तो पहले आप इसका नॉर्मल एक्सपेंशन देखिए, 1000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 3/10 प्लस 2/100.
तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे करूं, इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लेस पे है ये, प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/100। मैंने इसको और स्प्लिट कर दिया है। नाउ सी 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 1। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही है, 10 की पावर 2 का मतलब 10 10 से 100, 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट विल कम 1000 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो इन दिस वे आई एम राइटिंग प्लस 3 इंटू, अब ये जो अपॉन वाले हैं इसका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2। तो जो भी हमारे पास अपॉन में है उनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और मुझे बतानी है, 2 वर्ड में लिख रही हूं, रेसिप्रोकल एंड अनदर थिंग आई एम राइटिंग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है। रेसिप्रोकल बोला जाए तो भी हमें उसका लाइक वी हैव टू इंटर कन्वर्ट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन केस ऑफ रेसिप्रोकल ऑल्सो एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑल्सो। तो इन शॉर्ट दिस रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आर ऑलमोस्ट सेम। और एक्सपेंशन आपको पता था, एक्सपेंशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव सीन। So you can do the related examples. Okay, now laws of exponents also you have heard. Now we will do some questions of exercise 12.1 to understand the application of this laws in a better way. Okay, now let's start exercise 12.1. We will see some of the question. First of all, we will start from question number 1. In question number 1 is evaluate. मतलब सिर्फ हमें calculate करना है. We have to find the value of. First part is 3 raised to power -2. Now we can see the negative power. Negative power को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, positive. How? Like this 3 will come in denominator and then this power will become positive. Now what does it mean? 1 by 3 into 3 which is equal to 1 by 9. Okay, very simple it is. Similarly we will look at second part. That is -4 raised to power -2. Now again I can see the negative power. So how I will make it positive? Power को देखोगे आप, बेस नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर इज नेगेटिव इसलिए मैं इसको नीचे लेकर आ गई तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। नाउ -4 इंटू -4, 4 4 जा 16 होता है और 2 माइनस साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Now similarly we will look at third part. Third part में है 1/2 की पावर -5. Now again the power is negative. तो पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। 1/2 की जगह 2/1। हमें बेस का रेसिप्रोकल करना है, जो भी हमारा बेस है। यहाँ पे बेस क्या था, 3/1 था वो, तो उसका मैंने क्या कर दिया 1/2। यहाँ क्या था -4, सो 1/-4। It was 1/2, so it became 2/1. अब इसकी पावर क्या बन गई, 5। अब इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स। सिमिलरली 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 5 टाइम्स। 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। 2 को 5 टाइम्स करेंगे, दैट इज 32। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. So the final answer is 32. Now we will look at the next question, that is question number 2. Question number 2 is simplify. Simplify मतलब उसको छोटा करो पहले, and express the result in power notation with positive exponent. पहले उसको simplify करो, फिर जो भी हमारा simplify करके आंसर आ रहा है उसको पावर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, and that also with only positive power. So let's see. फर्स्ट पार्ट में क्या है, -4 की पावर 5
डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जो सेम होता है मैं उसको कॉमन लेंगे हम। ठीक है, अब डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, सो इट विल बी 5 माइनस 8। सो -4 पावर क्या होगी इसकी, -3। 3 लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ 5 माइनस 8 है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, सो इट विल कम इन नेगेटिव। अब ये हमारा नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 बाय -4 की पावर 3। हम इसको चाहे तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं, बट वी विल नॉट डू बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म ओनली। Okay, so this is the answer. And one more thing you can do, you can mention the identity which you have used, that is a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a m minus n. So this identity or whatever laws of exponent which we have used, that we have to mention. Similarly, we will look at second part. Second part में क्या है, 1 by 2 का क्यूब और इसकी पावर 2। तो इसका क्या मतलब होता है, 1 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3 तो पहले से ही थी। नाउ दिस 2 इज विद होल बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2। 1 1 जा 1 ही होगा। नाउ दिस विल बी 2 की पावर 3 इंटू 2 बाय विच लॉ, ये आ गया हमारा 2 की पावर 6। इसको हम आगे और सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू लीव अवर आंसर इन एक्सपोनेंट ओनली। नाउ वी हैव यूज्ड द एक्सपोनेंट लॉ, दैट इज a raised to power m whole bracket n is equal to a raised to power m into n. Now similarly we will look at third part. थर्ड पार्ट में क्या है, -3 की पावर 4 इंटू 5 by 3 की पावर 4। नाउ सी, -3 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब है, 5 की पावर भी 4 अपॉन 3 की पावर भी 4, दोनों की पावर 4 4 हो जाएंगी। नाउ सी, इसको अगर हम देखेंगे तो ये माइनस साइन 4 बार है, मीन्स द आंसर विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, 3 3 है, सो दे विल बी कैंसल्ड आउट। द रिमेनिंग आंसर इज 5 raised to power 4 और हम अपना आंसर यहीं पर ही खत्म कर देंगे। वाई, बिकॉज वी हैव टू कीप इट इन एक्सपोनेंट ओनली। नाउ वी विल लुक एट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारा 3 raised to power -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -10 into 3 raised to power -5। So when we will look at this bracket, first we have to solve the bracket. तो इसमें हम देखेंगे बेस कॉमन एंड पावर विल बी -7, डिवाइड है तो माइनस होंगी पावर, -10, ठीक है, दोनों पावर नेगेटिव थी, इंटू 3 की पावर -5। नाउ दिस विल बी -7 प्लस 10, सो 3 की पावर -7 प्लस 10 मीन्स 3 इंटू 3 की पावर -5। नाउ अगेन बेस इज सेम, so base common and multiply sign is there, so the powers will be added, 3 plus -5, so that is equal to 3 की पावर -2। 3 की पावर कितनी आ गई, -2। हम अपना आंसर यहाँ पे नहीं खत्म कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय 3 की पावर 2, क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो मैंने उसको पॉजिटिव बना दी। नाउ फिफ्थ पार्ट इज क्वाइट सिंपल, 2 की पावर -3 है इंटू -7 की पावर भी -3 है। सबसे पहले पावर्स को नेगेटिव है उनको हम पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि एक और चीज हो सकती है, यहाँ पे हमारा पावर सेम है एंड बेस इज डिफरेंट, सो अनदर आइडेंटिटी वी कैन यूज, पावर विल बी माइनस, दैट इज -14 की पावर -3। 1 by -14 इसकी पावर हो जाएगी 3। So in this way we have simplified it also, as well as we have kept all the exponent in
positive form. So this much we will do in today's class. The next topic we will discuss in our next class. Thank you, students.